اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے، اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے، اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے۔ اے شہ انبیاء درود پڑھو، کیونکہ درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ اے شہ انبیاء درود پڑھو، کیونکہ درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ سارے لوگ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے نا، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا شعبان بابو جو بچے کے چچا ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو والد صاحب آپ کے ایک شعر سناتا ہوں، سنیے گا۔ دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ہے، ارے بولیے نا، سارے لوگ بولیے سبحان اللہ۔ بس حضرت 20 ہی منٹ کا وقت دیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 20 منٹ میں وہ تقریر کر دوں جو 24 تاریخ کو میں ضلع شیوہر میں کیا تھا۔ 5 تاریخ کے بعد انٹرنیٹ پہ وہ تقریر آ جائے گی، سن لیجئے گا۔ ذرا ماحول بنائیے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ سارے لوگ اٹھائیے، اس لیے کہ جو ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھتے ہیں نا، اس ہاتھ میں کبھی لقوہ نہیں مارتا ہے۔ تو ذرا اٹھائیے نبی کے نام پہ اور کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ سنیے، آج لوگ نیتاؤں کی سپورٹ میں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں۔ آ جائے کوئی آپ کے محلے میں بی جے پی کا نیتا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں اور کہتے ہیں نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد۔ آ جائے کوئی سپا کا نیتا، لوگ اس کے سپورٹ میں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد۔ آ جائے کوئی آر جے ڈی کا نیتا، لوگ اس کے سپورٹ میں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد۔ مگر وہی میڈیا والوں، میں آج تمہیں بتا کر جاتا ہوں، جو ہاتھ نیتاؤں کی سپورٹ میں اٹھائے جاتے ہیں، اس ہاتھ کی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مگر جو ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھائے جاتے ہیں، جو ہاتھ آمنہ کے لال کے نام پہ اٹھائے جاتے ہیں، اس ہاتھ کی حفاظت دنیا میں بھی ہوگی اور میدان محشر میں بھی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ تو ذرا نبی کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھائیے اور کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ جو شعر پڑھ رہا تھا اقبال صاحب، سنیے۔ دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ہے، دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے۔ دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، اور لالوں میں پسند ہے مجھے آمنہ کا لال، لالوں میں پسند ہے مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ لالوں میں پسند ہے مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ اور ایک شعر آپ کی بیداری کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوں کہ تن کو دھویا اگر من کو دھویا نہیں، تن کو دھویا اگر من کو دھویا نہیں، ایسا گنگا نہانے سے کیا فائدہ۔ تن کو دھویا اگر من کو دھویا نہیں، ایسا گنگا نہانے سے کیا فائدہ۔ تو نے پیاسے کو پانی پلایا نہیں، بعد امرت پلانے سے کیا فائدہ۔ اور میرا نام اصغر، میرا نام اصغر، ضیا ہے لقب، گھر محمد پور پرریا شہر۔ میری تقریر کے وقت سوتے ہو جب، تو پھر مجھ کو بلانے سے کیا فائدہ۔ میری تقریر کے وقت
सोते हो जब तो फिर मुझको बुलाने से क्या फायदा, बेदार हो जाइए और कुछ पैगाम दे रहा हूँ, उस पैगाम को लीजिए। इंशाअल्लाहुल अजीज अगर आप उस पैगाम पे अमल कर लेंगे, आप यहाँ भी कामयाब होंगे, मैदान महशर में भी कामयाब होंगे। अल्लामा इकबाल के चंद शेर से मैं शुरू होता हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा था, नाम मुसलमान मिजाज काफिराना है, नाम मुसलमान मिजाज काफिराना है, मियाँ उन्हीं का वक्त और उन्हीं का जमाना है। तुम खान भी हो, सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ, सच बताओ, क्या तुम मुसलमान भी हो? जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज तो हम नाम के मुसलमान बनते हैं, हमारे किरदार मुसलमान वाला नहीं है। आज तो हम जो है जबान से मुसलमान बनते हैं, लेकिन मुसलमानों सिर्फ नाम से मुसलमान बनने से काम नहीं चलेगा, हमारा किरदार भी मुसलमान वाला होना चाहिए। सिर्फ जबान से मुसलमान बनने से काम नहीं चलेगा, हमारा कैरेक्टर भी मुसलमान वाला होना चाहिए। हम मुसलमानों के नाम पे अपना नाम रख लेंगे तो हम मुसलमान नहीं कहलाएंगे जब तक हमारा किरदार मुसलमान वाला ना हो जाए, जब तक हमारा कैरेक्टर मुसलमान वाला ना हो जाए। तो मुसलमानों का कैरेक्टर क्या था दोस्तों? आज से पहले यानी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा अपने कैरेक्टर से पहचाने जाते थे, सहाबा अपने किरदार से पहचाने जाते थे, सहाबा अपने मिजाज से पहचाने जाते थे। लोग सहाबा को देखते थे तो कहते थे देखो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक आ रहे हैं। लोग सहाबा को देखते थे कहते थे देखो वो आका के गुलाम आ रहे हैं। लोग सहाबा को देखते थे कहते थे वो देखो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले आ रहे हैं। लोग सहाबा को देखते थे कहते थे वो देखो मुसलमान आ रहे हैं। मगर मुसलमानों आज तो ना तेरे पास मुसलमानों की पहचान है, ना तो तेरा किरदार मुसलमान वाला है, ना तो तेरा कैरेक्टर मुसलमान वाला है, और तुम नाम के मुसलमान बनते हो। हालांकि एक मर्तबा मुझसे हादसा यही हो गया था। हादसा क्या हुआ था? मैंने एक शख्स को देखा, उसे सलाम कर दिया, हालांकि दाढ़ी नहीं थी उसके पास। आज मैंने जो ही सलाम किया, सलाम के बाद जब जवाब नहीं मिला, मैंने चेहरा देखा तो मैं सोच में पड़ गया, यार मुझसे तो हादसा हो गया। थोड़ी ही देर के बाद मैं सोचने लगा, काश अगर मुसलमान अपनी पहचान को रखता तो आज हादसा ना होता। मुसलमान तो आज सिर्फ नाम के मुसलमान बन रहे हैं। मुसलमानों के पास मुसलमान की पहचान नहीं है। मुसलमानों हमें मुसलमानों की पहचान लानी होगी। आज देखिए मुसलमान का बच्चा अगर फौजी में जाता है भर्ती होने के लिए, तो फौजी वाले कहते हैं अगर फौजी में दाखिल होना है, फौज की नौकरी करना है तो दाढ़ी छिलाना होगा, बाल को कटवाना होगा, टोपी को उतारना होगा। मगर मुसलमानों अगर ये फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाता है या हाई कोर्ट के जज के पास जाता है तो जज कहता है मुसलमानों के लिए अगर दाढ़ी रखना कंपलसरी होता तो हर मुसलमान दाढ़ी क्यों नहीं रखता? अगर मुसलमानों के लिए टोपी पहनना अगर कंपलसरी होता तो हर मुसलमान टोपी क्यों नहीं पहनता? जज कहता है अगर मुसलमानों के लिए अमामा पहनना अगर जरूरी होता या कंपलसरी होता या सुन्नत होता तो हर मुसलमान अमामा क्यों नहीं बांधता? मुसलमानों मगर जब यही बात सिख की आती है तो सिख कहता है ओके साहब हम दाढ़ी भी रखेंगे, हम पगड़ी भी बांधेंगे, हम बाल भी रखेंगे। जज कहता है तुम दाढ़ी क्यों रखोगे, तुम बाल क्यों रखोगे, तुम पगड़ी क्यों बांधोगे? तो कहता है हमारे लिए दाढ़ी भी कंपलसरी है, हमारे लिए पगड़ी भी कंपलसरी है, हमारे लिए बाल भी कंपलसरी है। अब जज अपने निगाहों को उठाता है और उठा करके देखता है तो कहता क्या है, हाँ अगर सिख अगर फौजी में रहेंगे तो उनके दाढ़ी पे पाबंदी नहीं होगी, उनके बाल पे पाबंदी नहीं होगी, उनके टोपी पे उनके जो है पगड़ी पे पाबंदी नहीं होगी। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी देखता है कि इसलिए कि सिखों के लिए दाढ़ी रखना कंपलसरी है, सिखों के लिए बाल रखना
कंपलसरी है, सिखों के लिए पगड़ी बांधना कंपलसरी है, मगर जब मुसलमान की बारी आती है तो मुसलमान कहता है मौलाना करेंगे तो भी चलेगा, न करेंगे तो भी चलेगा, पढ़ेंगे तो भी चलेगा, न पढ़ेंगे तो भी चलेगा। मुसलमानों के अंदर हमारा पन है, जिस दिन हमारे मुसलमानों के अंदर से ये हमारा पन की अगर खत्म हो जाएगा, नबी के सुन्नत को हम अपना लेंगे, हम यहाँ भी कामयाब होंगे और मैदान महशर में भी कामयाब होंगे। तो आज तो मुसलमानों के अंदर आवारापंथी है, आज मुसलमान अपने किरदार से नहीं पहचाने जाते हैं। मुसलमानों हमें किरदार मुसलमानों वाला लाना होगा। मुसलमानों मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान का एक राजा है जो सऊदीया अरबिया गया था तिजारत करने के लिए। जब तिजारत करने के लिए सऊदीया गया, जाने के बाद एक जंगल से गुजरा, तो गुजरने के बाद अपने सिपाहियों को रोकता है, रोकने के बाद कहता है मेरे सिपाही ठहर जाओ। सिपाही ठहर गए। सिपाहियों ने कहा राजा साहब आपने किस लिए रोका है? तो सिपाही से राजा कहता क्या है, तुम्हें पता है ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से मुसलमान की गुजर नहीं हुई है, इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है। अब सिपाही हाथ जोड़कर कहते हैं राजा साहब ये बता दिया जाए आप तो हिंदुस्तान से आए हैं, आपको कैसे पता चल गया कि इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है? तो हिंदुस्तान का राजा है, कलमा नहीं पढ़ा है, मुसलमान नहीं है। कहता क्या है, देखो मैं बताता हूँ, इसे तबार से पता चलता है कि इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है, कि सामने जो रास्ता है उस रास्ते पे पत्थर दिख रहा है। अगर मुसलमान इस रास्ते से गुजरता तो रास्ता बाद में पार करता, पत्थर को सबसे पहले हटा देता। इसलिए कि मुसलमानों का ये किरदार है, ये कैरेक्टर है, ये अखलाक है। उनके पैगंबर फरमाते हैं कि जब तुम रास्ता चलो तो रास्ते में तकलीफ देने वाला अगर कोई चीज हो तो रास्ता बाद में जाना, पहले उसे हटा देना। बात समझ में आ रही है? ये है मुसलमानों का किरदार। तो हमारे असलाफ के किरदारों कैरेक्टर को देखकर हम पहचाने जाते थे। हजरत एक चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल दूं कि अगर इंसान को विरासत में मिल जाए जमीन, सुनिएगा, अगर इंसान को विरासत में मिल जाए जमीन तो वो जमीन की कदर नहीं करता है। जमालुद्दीन साहब हजरत वो जमीन की कदर नहीं करेगा। बाप जमींदार था, बेटे को जमीन मिल गई, अब वो जमीन की कदर नहीं करेगा, बेच देगा। बेचने में थोड़ा भी उसे जो है तकलीफ नहीं होगी, बेच देगा। अगर उसी बेटे को विरासत में मिल जाए दुकान भी बेच देगा, थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी। विरासत में मिल जाए 4 व्हीलर, उसे भी बेच देगा। मगर मुसलमानों जो शख्स मेहनत से जमीन खरीदा हो वो जमीन को कभी बेच नहीं सकता है। जो शख्स मेहनत की कमाई से कार खरीदा हो उस कार को बेच नहीं सकता है। पूछिएगा कव्वाल साहब से, जो मैंने 4000 में आपके मदरसे की बाइक दिलवाया था उसे बेच नहीं सकते हैं। क्यों? जाकर कहेंगे कव्वाल साहब बेचिएगा बाइक, कहेंगे नहीं, यही तो है जो हर जरूरत पे काम आती है, यही तो है जो हर वक्त काम आता है। 2-4 कट्ठा जो जमीन भी जो कव्वाल साहब ने रजिस्ट्री कराया है, जाकर के कहिए ना कव्वाल साहब उस जमीन को बेच दीजिए, कहेंगे ना, बड़ी मुश्किल से मैंने जमीन खरीदा है, इसलिए कि बाप जमींदार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पैसा से खरीदा है। हमारे बाप के पास उतनी जमीन नहीं थी, मैंने बहुत मेहनत और मुशक्कत करके जो इस जमीन को हासिल किया है। मैंने 10 रुपया कमाता था, 5 रुपया बच्चों की परवरिश में खर्च करता था और 5 रुपया बचा करके इस जमीन को खरीदा है। मैं बताना ये चाहता हूँ, जिसको विरासत में जमीन मिलती है वो जमीन की कदर नहीं करता है, जिसके विरासत में कार मिलता है वो कार की कदर नहीं करता है, जिसको विरासत में दुकान मिल जाए वो दुकान की कदर नहीं करेगा, मकान की कदर नहीं करेगा। वैसा ही मुसलमानों आज हम इस्लाम की कदर नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमें विरासत में इस्लाम मिला है। हमारे बाप दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान बन गए, हमारे दादा परदादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान बन गए। मुसलमानों हमको तो विरासत में इस्लाम मिला है, इसलिए हम आज हम इस्लाम की कदर नहीं करते हैं। अगर इस्लाम के कदर को समझना हो, इस्लाम के बारे में समझना हो कि इस्लाम हमें और आप तक कैसे मिला है, तो चलो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के पास। अगर इस्लाम को अगर
नमाज को समझना हो तो चलो हजरत अली के पास, अगर रोजा को समझना हो चलो सहाबा के पास, अगर इस्लाम के अरकान को समझना हो चलो सिद्दीक अकबर के पास। आज तो हमारे पास कुरान मौजूद है, आज हमारे पास किताब की शक्ल में कुरान मौजूद है, मगर आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते। आज हमारी नमाजों पे पाबंदियां नहीं है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते। मुसलमानों, मगर जिस वक्त सहाबा पे नमाज पे पाबंदियां लगी थी उस वक्त सहाबा नमाज पढ़ा करते थे। जिस वक्त कुरान किताब की शक्ल में कुरान नहीं था उस वक्त जो है हमसे ज्यादा कुरान पढ़े जाते थे। मुसलमानों, सहाबा का जमाना है, हजरत उमर इब्न खत्ताब है, आपने सुना होगा हजरत उमर इब्न खत्ताब का जमाना है। उन 40 सहाबा जो है आका का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं, मगर हजरत उमर इब्न खत्ताब है जो ही सुना है कि इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ रही है, या के बादे दिगरे लोग इस्लाम में कबूल हो रहे हैं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं। अब हजरत उमर है तलवार को लेते हैं और लेकर के चले हैं कि चलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल कर देंगे, न वो रहेंगे न इस्लाम फैलेगा, न वो रहेंगे न मुसलमान रहेंगे। पाएंगे इस्लाम को कत्ल कर देंगे, इस्लाम तरक्की नहीं करेगा। पाएंगे इस्लाम को कत्ल कर देंगे, इस्लाम आगे नहीं बढ़ेगा। पाएंगे इस्लाम को कत्ल कर देंगे, इस्लाम जो है इस्लाम परवाना नहीं चढ़ेगा। अब मुसलमानों, हजरत उमर इब्न खत्ताब है तलवार को लिए हैं और लेकर के चले हैं आका को कत्ल का इरादा करके, आका को कत्ल करने के लिए निकले हैं। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात होती है, वो हालांकि वो मुसलमान थे मगर बज़ाहिर मुसलमान नहीं थे, इसलिए उमर इब्न खत्ताब का दबदबा था। जो उमर इब्न खत्ताब के सामने कहता कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया हूँ, उसे उमर कत्ल कर देते या उसे उमर मारते थे। एक बूढ़ी औरत थी जिसके बारे में किताबों में आया है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब जब कलमा नहीं पढ़े थे उस बुरी औरत को बहुत मारते थे, बहुत सताते थे। मगर मुसलमानों, गौर करने की बात है, हजरत उमर तलवार लेकर निकले हैं आका को कत्ल करने के लिए। रास्ते में उस शख्स से मुलाकात होती है, कहते हैं उमर कहाँ जा रहे हो, उमर कहाँ जा रहे हो। अब उमर कहते हैं सुनो, मैं देख रहा हूँ इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ रही है, इस्लाम के मानने वालों की तादाद कसीर हो रही है। आज जो है 1 से लेकर के 39 लोग इस्लाम पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिए हैं, नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। मैं इरादा करके निकला हूँ कि आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को कत्ल कर दूंगा, न वो रहेंगे न इस्लाम आगे बढ़ेगा, न वो रहेंगे न कोई कलमा पढ़कर मुसलमान होगा। अब दोस्तों चले हैं कत्ल का इरादा करके। अब वो शख्स कहता है उमर चले हो पानी इस्लाम को खत्म करने, चले हो पानी इस्लाम को खत्म करने। ओ उमर, पहले जा अपने घर में जा और जा करके दे कि तेरी बहन और बहनोई कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। अब चले थे आका को कत्ल करने का इरादा लेकर, अब वहीं से इरादा बदलता है। पहले कहते हैं कि चलो अपनी पहले बहन के घर चलते हैं, चल करके वहां का हालात मालूम करते हैं। अब दोस्तों जब अपने बहन के घर जाते हैं देखते क्या है कि दरवाजा बंद है, अंदर कुरान की तिलावत हो रही है, अंदर कुरान की तिलावत हो रही है, मुअल्लिम कुरान पढ़ा रहा है, कुरान का दर्स दे रहा है। अब उमर दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज आई कहो। उमर कहते हैं मैं उमर हूँ। अब बहन और बहनोई खामोश हो गए हैं, डर के मारे कांपने लगे कि उमर आ गया है, उमर आज मुझे छोड़ेगा नहीं। अब बहन और बहनोई चुपके से उठते हैं और उठ करके कुरान को जो है छुपा देते हैं। अब दोस्तों कुरान को छुपाते हैं, छुपाने के बाद दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलने के बाद उमर कहते हैं मेरी बहन और बहनोई, मैंने सुना है कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हो, जो नया दीन लेकर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया है उसका उस दीन को तुम कबूल कर लिए हो, अब पैगंबर आजम का तुम कलमा पढ़ लिए हो। अब उमर के बहन और बहनोई सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हाँ मैं आका का कलमा पढ़ लिया हो। अब हजरत उमर मारने लगते हैं। हजरत उमर कहते हैं मेरे बहन सुनो, मेरे दुश्मन का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मेरे दुश्मन का कलमा पढ़ना छोड़ दो। जो नया दीन लेकर के आया है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, तुम अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ करके इन नए मजहब को क्यों अपना रहे हो, इस मजहब से दूर हो जाओ। मगर बहनोई है और बहन है कि दीन को छोड़ने की बात ही नहीं कर रही है, कह रही है ऐ उमर जब तक हमारे जिस्म में जान है
محمد کا लब पे नाम है। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद हजरत उमर एक डंडा अपने बहन के सर पे मारते हैं। बहन के सर से खून निकल गया, बहन बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद अब भी आका का नाम लब पे है, अब भी आका का नाम ज़बान पे है। अब हजरत उमर कहते हैं मेरी बहन इतना मारने के बाद भी तेरी ज़बान खामोश नहीं हो रही है, तेरे नाम पे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का कलमा है। जिस कुरान को तुम पढ़ रही थी वो कुरान तेरी ज़बानों पे है। ऐ बहन उस कुरान को तो जरा ला जिस कुरान को मैं भी पढ़ूं। अब उस कुरान को लाने की बातें हो रही है। उमर की बहन कह रही है ओ मेरे भाई उमर सुनो, ये किताब ऐसी वैसी किताब नहीं है जिसे तुम छू दोगे। अरे कुरान को छूना है तो तुम्हें गुस्ल करना होगा, कुरान को छूना है तुम्हें वजू करना होगा, कुरान को छूना है तुम्हें पाको साफ होना पड़ेगा। अब हजरत उमर गुस्ल कर रहे हैं, हजरत उमर वजू कर रहे हैं। वजू के बाद कुरान को लाया गया। वो कुरान किताब की शक्ल में नहीं था जो कुरान आज हमारे दरमियान किताब की शक्ल में है। दोस्तों उस वक्त कुरान जानवर के चमड़ों पे लिखा हुआ था, उस वक्त कुरान पत्थरों पे लिखा हुआ था, उस वक्त कुरान खजूरों के छालों पे लिखा हुआ था। मगर मुसलमानों जिस वक्त कुरान खजूर के छालों पे था, जिस वक्त कुरान पत्थरों पे लिखा हुआ था, जिस वक्त कुरान जानवरों के चमड़ों पे लिखा हुआ था, उस वक्त कुरान की तिलावत आज से ज्यादा हो रही थी। आज जितना हम तिलावत नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा उस वक्त कुरान की तिलावत हो रही है। अब कुरान जो है जानवरों के चमड़ों पे लिखा हुआ है। अब उमर की बहन जो है कुरान को लाती है, लाने के बाद पढ़ती है। जो ही कुरान को पढ़ना था उमर के दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई है। अब उमर कहते हैं ऐ मेरी बहन सुनो सुनो, ओ मेरी बहन सुनो, अब कुरान बाद में पढ़ना। जिस नबी पर ये कुरान नाजिल हुआ है, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ती हो उस इस्लाम में मुझे भी दाखिल होना है, उनके पास लेकर के चलो। अब हजरत उमर है आका के पास निकले हैं, आका के पास निकले हैं, इस्लाम कबूल करने के लिए निकले हैं। अब आका एक सहाबी के घर में बैठ करके सहाबा को दीन की तबलीग कर रहे हैं, आका दीन की बातें सिखा रहे हैं। थोड़े ही देर के बाद एक सहाबी की नजर उमर पे पड़ती है। जो ही नजर उमर पे जब नजर पड़ती है सहाबी बोल पड़ते हैं या रसूल अल्लाह वो उमर आ रहा है, उमर आपको कत्ल करने। आका फरमाते हैं उमर, आका फरमाते हैं मेरे सहाबी सुनो, अगर उमर का इरादा ठीक होगा तो उसे कलमा पढ़ा लिया जाएगा। ओ मेरे सहाबा सुनो सुनो, उमर का इरादा ठीक होगा तो उसे कलमा पढ़ा लिया जाएगा। अब आका अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और उठा करके रब की बारगाह में दौड़ा करते हैं। ओ पाक परवरदिगार आलम, इस्लाम में तो 39 लोग इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। ओ पाक परवरदिगार आलम, इस्लाम में 39 लोग आ गए हैं। ओ पाक परवरदिगार आलम, अब इस्लाम को मजबूती चाहिए, अब इस्लाम को ताकत चाहिए। ओ पाक परवरदिगार आलम, अब इस्लाम में ऐसे लोगों की जरूरत है जिसे इस्लाम को मजबूती मिल जाए। अब इस्लाम में ऐसे लोगों की जरूरत है जिसे इस्लाम को ताकत मिल जाए। ओ पाक परवरदिगार आलम, या तो इस्लाम में उमर इब्न खत्ताब को दे दे, या तो इस्लाम में अमर इब्न हशाम को दे दे, या तो खत्ताब को दे दे या अमर इब्न हशाम को दे दे। जानते हैं अमर इब्न हशाम किसका नाम था? अमर इब्न हशाम जो है वो अबू जहल का नाम था, उसका तो लक़ब अबू जहल का मिला। आका दुआ कर रहे हैं मौला या तो उमर इब्न खत्ताब को दे दे या अमर इब्न हशाम को दे दे। आका खुदा से मांग रहे हैं मौला या तो उमर को दे दे या अमर इब्न हशाम को दे दे। आका की दुआ रब की बारगाह में कबूल हुई। अब हजरत उमर आते हैं, आकर के आका के कदमों में गिर जाते हैं। गिरने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बनाइए। अब दोस्तों हजरत उमर इब्न खत्ताब है, कलमा पढ़कर आका का मुसलमान हुए हैं। मुसलमान होने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या आप अल्लाह के नबी नहीं है? आका क्या आप पे उतरने वाली किताब क्या वो सच्ची किताब नहीं है? आका फरमाते हैं उमर
मैं अल्लाह का सच्चा नबी भी हूँ और आप मेरे ऊपर उतरने वाला कुरान तमाम किताबों में सबसे अफजल व आला है। तब उमर फरमाते हैं या रसूलल्लाह, जब आप खुदा के सच्चे नबी हैं, जब आपकी उतरने वाली किताब कुरान मुक़द्दस तमाम किताबों में अफजल व आला है, तो फिर नमाज छुप छुप करके क्यों पढ़ रहे हैं? फिर रोजा छुप छुप करके क्यों रखा जाता है? फिर इबादत छुप करके क्यों किया जाता है? अब हजरत उमर है, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब मैं इस्लाम में आ गया हूँ, अब आज के बाद नमाज छुप कर नहीं पढ़ी जाएगी, अब आज के बाद इबादत छुप करके नहीं किया जाएगा। अब आका से फरमाते हो उमर, या रसूल अल्लाह, अब आज के बाद हम लोग खाने काबा में चलेंगे और जा करके बिना खौफ बिना डर सबको दिखा करके हम लोग नमाज पढ़ेंगे और खुल्लम खुल्ला आज के बाद इस्लाम का प्रचार किया जाएगा। समझ गए? उससे पहले जब उमर कलमा नहीं पढ़े थे तो नमाजें छुप छुप करके सहाबा पढ़ते थे। जब इस्लाम कबूल नहीं किए थे तो लोग छुप करके रोजा रखते थे, मगर जब उमर इस्लाम में आ गए तो उमर फरमाते हैं कि मैं इस्लाम कबूल करने के बाद मैं डोर बाई डोर दरवाजा जाता और जाकर के कहता, लोगों जो लोग कलमा पढ़ते हैं उन्हें तुम मार देते हो, आज देखो उमर इब्ने खत्ताब आया है, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया हूँ, है हिम्मत तो मुझसे मुकाबला कर। क्या कहते उमर? मैं नबी का कलमा पढ़ लिया हूँ, है हिम्मत तो मुझसे मुकाबला करो। लोगों आज लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। ना दोस्तों, इस्लाम तो तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम तो नबी के इखलाक से फैला है, इस्लाम तो नबी के किरदार से फैला है, इस्लाम तो नबी के कैरेक्टर से फैला है। जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, कह देना हाँ, इस्लाम तलवार के जोर से फैला तो है, मगर वो तलवार लोहे की तलवार नहीं थी, वो तलवार तांबे की तलवार नहीं थी। वो इस्लाम जिस तलवार से फैला है वो तलवार तो नबी की मोहब्बत की तलवार थी, वो तलवार तो नबी के इखलाक की तलवार थी, वो तलवार तो नबी के किरदार की तलवार थी। ये नबी के आजम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फों करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा कर छोड़ा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला, मुझे जो बोलने में गलती हुई हो रब्बे कदीर अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए और हमारे बोलने से ज्यादा इस पे आप कमल करने का तौफीक और रफीक अता फरमाए। सारे लोग मोहब्बत के साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।